डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में खिंची तलवार। He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को सुना दिया। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. ऑन कैमरा ट्रंप ज़ेलेंस्की की तू में। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. जिस महामुलाकात पर दुनिया की नजर थी, जिस मिनरल डील पर विश्व भर के देश नजरें गड़ाए थे, उस महामुलाकात का अंजाम कुछ ऐसा रहा कि ट्रंप ने शांति समझौते की बात करते हुए ज़ेलेंस्की पर लाखों जिंदगियों से खेलने का आरोप लगा दिया और फिर छिड़ गई व्हाइट हाउस के अंदर मेहमान से ही जंग। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. ऐसी तस्वीर कभी व्हाइट हाउस से किसी ने नहीं देखी, जब किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने सुपर पावर को इस तरह से जवाब दिया हो। एक तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच झगड़ा देखने को मिला। तू में दोनों देश के इरादे भी दुनिया के सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मिनरल डील के लिए बुलाया था, अपनी शर्त मनवाने के लिए, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात आई, ज़ेलेंस्की फ्लावर से फायर हो गए। Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. हालात ये हो गए कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच भाषा की मर्यादा टूट गई। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. And your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ज़ेलेंस्की फायर थे और डोनाल्ड ट्रंप इससे सख्ते में थे, क्योंकि सुपर पावर पर कोई पहली बार इस तरह से बरस पड़ा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे डाली कि उनका देश बहुत मुसीबत में है और अमेरिका ही उसकी मदद कर सकता है। If you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. And your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. वैसे तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत 45 मिनट तक चली, लेकिन जब बात यूक्रेन और रूस के जंग तक पहुंची, तो आखिरी के 10 मिनट में कूटनीति को दोनों देश भूल गए और एक दूसरे पर बरस पड़े। यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध को कूटनीतिक तरीके से हल करने की बात कही और इसी पर ज़ेलेंस्की उन पर भड़क उठे। कूटनीति का नाम सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा हाई हो गया। उन्होंने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिका से ही पूछ लिया कि वो कूटनीति की बात कर रहा है, जबकि ट्रंप के वक्त में भी पुतिन ने युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ दिया था और अमेरिका ने कोई दखल नहीं दिया।
अमेरिका ने ठुकराया, यूरोप ने अपनाया। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. जेलेंस्की को मिला यूरोप का पूरा साथ। And I want to thank you, people of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनेगा मोर्चा। And you have full backing across the United Kingdom. व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप से जेलेंस्की की बगावत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता बंद करने की घोषणा कर दी। व्हाइट हाउस में हुए बवाल के बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि अब यूक्रेन को मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका के इस फैसले के बाद जेलेंस्की विकल्प की तलाश में थे। वो इसी उधेड़-बुन में थे, लेकिन उनकी टेंशन दूर हो गई। यूरोप के ज्यादातर नेताओं ने यूक्रेन मसले पर जेलेंस्की के पक्ष का समर्थन किया। यूरोप के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यूक्रेन को मदद देने के लिए सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। Ukraine's accession to the European Union will be the most important security guarantee for the future of Ukraine. यही नहीं, ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की की मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से हुई और इस मुलाकात का अंजाम ये रहा कि ब्रिटेन ने एक बार फिर से दोहराया कि वो अंतर यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। यानी ट्रंप के साथ बहस के बाद भी कीर स्टारमर ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया था। यही नहीं, ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को अपने हथियारों को बढ़ाने के लिए 284 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान भी कर दिया। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप के लगभग सभी देशों ने अमेरिका की नाराजगी झेलते हुए यूक्रेन का साथ देने और उसकी मदद करने का फैसला लिया है। अब यूक्रेन को मदद देने के पीछे यूरोपीय देशों का मकसद भी जानना जरूरी है। सबसे पहले यूरोपीय देशों का मकसद रूस से यूक्रेन की रक्षा करना और उसे स्थिरता देना है। इसके साथ ही यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सके। इसके साथ ही यूक्रेन को मदद करने के पीछे रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी मकसद हो सकता है। यानी अमेरिका के ठुकराने के बाद भी यूक्रेन को समर्थन मिलता रहेगा। ट्रंप से बहस के बाद यूक्रेन के साथ जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, लिथुआनिया, लातविया, नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड डटकर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद क्या यूरोप के ये देश रूस को रोक पाएंगे? क्या जेलेंस्की के पास कोई रास्ता बचा है? यानी इन सबके बीच जेलेंस्की को यूरोपीय देशों से रक्षा और वित्तीय सहायता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यूक्रेनी जनता और सेना के मनोबल को बनाए रखना जरूरी है। अगर युद्ध में रणनीतिक बढ़त नहीं मिलती तो रूस के साथ बातचीत का एक नया रास्ता तलाशना होगा। उधर यूरोप के देश यूक्रेन की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अकेले यूरोप के इन देशों पर निर्भर रहना जेलेंस्की के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि यूरोप के इस स्टैंड से अमेरिका पर भी दबाव बनेगा और जैसी भौगोलिक स्थिति है, नेटो के सबसे मजबूत साथी अमेरिका को भी आज नहीं तो कल यूक्रेन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के साइड इफेक्ट। Obama gave sheets and Trump gave javelins. ट्रंप से जुबानी जंग का अंजाम भुगतेगा यूक्रेन। Don't tell us what we're going to feel. रूस से जंग होगी अब जेलेंस्की के लिए मुश्किल। God bless. You don't know. विश्व के सुपर पावर सेंटर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग का अंजाम यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले यूक्रेन को मदद कम कर सकते हैं। हालांकि इन सब आशंकाओं के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर बरकरार है। ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने न झुकने का ऐलान कर दिया। सवाल, क्या आपको ट्रंप से माफी मांगनी चाहिए? जेलेंस्की, नहीं। सवाल, क्या ट्रंप पुतिन के बहुत करीब है? जेलेंस्की, मैं चाहता हूं कि ट्रंप बीच में रहे। मैं चाहता हूं कि ट्रंप हमारे पक्ष में रहे। इधर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग हुई, उधर करीब 8000 किलोमीटर दूर मॉस्को में पुतिन की बाछें खिल गई। फौरन रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि ट्रंप और बेंस ने उस बदमाश पर हमला करने से कैसे खुद को रोका, ये संयम का चमत्कार है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका ये दावा था कि 2022 में कीव शासन अकेला था।
बिना किसी समर्थन के। यही नहीं, ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तीखी बहस का एक और साइड इफेक्ट दिखा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने ड्रोन से हमले कर दिए। खार्किव पर एक साथ 9 रूसी ड्रोन ने चिकित्सा सुविधा और अन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू ये जंग बीते 3 साल से हो रही है और युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पूरी दिलेरी से ही रूस के सामने डटा है और यूक्रेन की इस दिलेरी के पीछे अमेरिका समेत नेटो देश है। लेकिन अब इस समय जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाली बात मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया तो आशंका प्रबल होने लगी है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $95 बिलियन की मदद दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि खबर है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रहेगी, लेकिन अब पहले जैसी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपनी सहायता को सीमित कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूक्रेन के आसपास कई नेटो और नेटो समर्थित देश हैं, जिसमें मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड शामिल है। और अगर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ जाता है तो ये संभव है कि रूस के टारगेट पर सीधे नेटो देश आ जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि रूस की जद में सीधे सीधे नेटो देश आ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाए ताकि वह रूस के हमलों का सामना कर सके।